અને આ બધી પરિસ્થિતિમાં હું જે જોઈ રહ્યો છું કે જેમ હર્ષદ મહેતાનું આખું જે સ્કેમ થયું અને ત્યાર પછી જે રીતના ભારતનું મૂડી બજાર ને ભારતનું ખાસ કરીને ઇક્વિટી ને સ્ટોક માર્કેટ જે રીતના રેગ્યુલેટ થયું, જે રીતના ઇલેક્ટ્રોનિક આખું એનું જે કન્વર્ઝન થયું અને જે રીતના આજે વન ઓફ ધ બેસ્ટ એક્સચેન્જીસ ઇન ધ વર્લ્ડ છે, ઇવન ફાર અહેડ ધ ન્યુયોર્ક સ્ટોક એક્સચેન્જ, તો હું એવું જોઉં છું કે આગામી દિવસોમાં આને કેસ સ્ટડી તરીકે લઈને, કારણ કે જે પ્રકારનો અવાજ આવી રહ્યો છે, જે પ્રકારનો રકસ થઈ રહ્યો છે બધી જગ્યાએથી, અપોઝિશન તરફથી, આના તરફથી ને ક્યાંયથી એક્ઝેક્ટ જવાબ નથી મળતો, એવી પરિસ્થિતિમાં એફએનડો, કારણ કે એફએનડો જેવી વસ્તુ છે, એફએનડો એક પ્રકારનો ડબ્બો છે, એક પ્રકારનો સટ્ટો છે, જેમાં આવા શોર્ટ સેલિંગ અને આવી બધું વસ્તુ ફ્યુચરની તમે લઈને ચાલો, એટલે એફએનડો રેગ્યુલેટ થાય કે માની લ્યો 10 એક લોટમાં 10 થી વધારે પીસીસ નથી લેવાના અને 1000 પીસ તમે મેક્સ લઈ શકો એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટર, કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે હમણાંના દિવસોમાં જે વિડીયોઝ આવે છે એમાં લોકો લાખ 2 લાખ રૂપિયા એફએનડોમાં ક્યાંક રોયકા ને 2 કરોડ મેનેજ કરતા થઈ ગયા છે ને સ્ટોક ટ્રેડિંગ શીખી રહ્યા છે, ને કોરોના પછી જે રીતના આપણે જોયું કે લોકો સ્ટોક માર્કેટ તરફ વધારે વળ્યા છે અને ઇન્વેસ્ટર્સ વધારે વળ્યા છે, તો ડેફિનેટલી ઈ દિશામાં ક્યાંક રેગ્યુલેટરી એવું લાગ્યું હોય કે કાલ સવારે આવું હિન્ડનબર્ગ જેવું કોક કરે અને આ બધું થાય એના કરતા પહેલા એક ટ્રાયલ શોટ લઈ લ્યો, કારણ કે અદાની પોર્ટમાં તમે એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી હશે, અદાની પોર્ટની સામે ગ્રીન કેસીસ ઘણા બધા છે, ચેરના ઝાડ ડિસ્ટ્રોય કરી નાખવામાં આ બધા થયા હતા. ભુજમાં એક શખ્સ હતા, એમાં એ જ મોટા ભાગે કેસ કરતા હતા, સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ગયા, એ હારી ગયા અને અલ્ટિમેટલી આજે ઈ ભાઈ છે, ઈ અદાનીમાં હજી કોન્ટ્રાક્ટર છે, એનું કામે ચાલુ છે, પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ એન્વાયરમેન્ટ જે લડત હતી એના મુદ્દે ક્લીન ચીટ મળી ગઈ છે, એટલે કાલ સવારે ગ્રીન પીસ કે એવી કોઈ સંસ્થા કદાચ ઊભી રહે તો એ ઊભી ના રહી શકે, એટલે આ એક મોટ ક્રિએટ કરવાની પ્રક્રિયા હોઈ શકે એફએનડોને રેગ્યુલેટ કરવાની, અને પછી તમે G20 ના ટેબલ ઉપર ઈ મૂકો કે અમે એફએનડો રેગ્યુલેટ કરી નાખ્યું છે ને આજ તમારે લઈ આવવાની જરૂર છે ને એ બીજા લોકો લઈ આવે, કદાચ એવું બને તો આખું આ હિન્ડનબર્ગ જેવું આખું સેટઅપ કે આ બધા જે શોર્ટ સેલર્સનું સેટઅપ, કારણ કે અમેરિકામાં અત્યારે શોર્ટ સેલર્સની સામે બહુ મોટા પ્રોબ્લેમ્સ છે, ત્યાંની જ્યુડિશરીમાં ઘણા બધા કેસીસ ચાલે છે સ્કાલ્પિંગ ને સ્પૂફિંગના સંદર્ભે, અને એમાં જો કાંઈ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ જોવામાં આવશે તો એ રીતના આ બધું થશે, કારણ કે આ શોર્ટ સેલર્સ ઉભા થયા છે બેઝિકલી 2008ની મંદીમાં, જ્યારે જે ક્રાઇસિસ આવી હતી મોર્ગેજ ક્રાઇસિસ, ઈ શેર્સ એ લોકોએ શોર્ટ કર્યા અને સામા ઇન્સ્યોરન્સ ઘર હતા જે એના ઇન્સ્યોરન્સના પૈસા મેળ્યા અને શોર્ટ સેલિંગમાંથી કમાણા, અને એમાંથી પછી લોકોને સમજાયું કે આ ધંધો કરવા જેવો છે, એટલે શોર્ટ સેલિંગ એક્ટિવિઝમ એક યુરોપિયન કંપની છે ક્રેડિટ કાર્ડ કરીને સ્કેન્ડલ કરીને એક આખી વેબ સિરીઝ છે નેટફ્લિક્સ ઉપર, ડોક્યુમેન્ટરી છે, એમાં આ જ વસ્તુ થઈ છે, શોર્ટ સેલર્સ અને જર્નલિસ્ટે ભેગા થઈને એક આખી કંપની કોલેપ્સ કરાવડાવી હતી. તો આ પરિસ્થિતિ હું એવું માનું છું કે અત્યારે જે પ્રાઇમા ફેસી જે કાંઈ મેં જોયું છે, હજી મારું આખું ડિટેલ્ડ અભ્યાસ બાકી છે, પણ પ્રાઇમા ફેસી જો હું ઓબ્ઝર્વ કરું તો મને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે આ આખી રમત કંઈક જુદા લેવલની છે અને આ અત્યારે આપણને સમજાતી નથી. साजिश क्या हुई? साजिश क्या हुई? समझाता हूँ, इसके ऊपर मैं आता हूँ. अगर ये 100 वाले में उतरे हैं तो उनकी आज की वैल्यू 15 या 1300 या जो भी है उस तरीके से चल रही है, 13 गुना टाइम्स. अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो राइट विंग गवर्नमेंट है, ये एक तरीके का एक वोट बिल्टअप करती है, एक ब्लूप्रिंट बनाती है, क्योंकि मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ आपको बताऊं. अदानी पोर्ट्स के सामने बहुत सारे केसेस एनवायरमेंट को लेके हुए, सुप्रीम कोर्ट तक उसमें क्लीन चिट उसको मिली. ये केसेस कैसे हुए इंटरेस्टिंग है. वहां पे एक भुज में एक कॉन्ट्रैक्टर है, अदानी के पोर्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वो कॉन्ट्रैक्टर है, वहां पे वही केस किया करते थे और अल्टीमेटली वो लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां पे क्लीन चिट मिल गई. तो आज की तारीख में कोई ग्रीन एक्टिविस्ट या एनवायरमेंट वाले उस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते. तो ये एक फिक्स गेम हो गया पूरा का पूरा. वैसे ही यहां हो रहा है कि जो राइट विंगर्स गवर्नमेंट, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, आपने सोचने की कोशिश कीजिए कि आज आपका ये स्कैम या ये जो इन्फ्लेशन वाली बात है, शेयर प्राइसेस को आपने मैनिपुलेट करके क्यों आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट सेलर एक्टिविज्म है मार्केट में. और शॉर्ट सेलर एक्टिविज्म किस वजह से? शॉर्ट सेलर एक्टिविज्म बेसिकली एफएनडो की जो प्रैक्टिस है भारत में, उसकी वजह से है. फीचर्स एंड ऑप्शंस जो बेसिकली एक डब्बा है, एक सट्टा है, जिसमें आप भविष्य का एक भाव लगा के चलते हैं. तो जिस तरीके से हर्षद मेहता के स्कैम के बाद पूरा का पूरा जैसे स्टॉक मार्केट इंडिया का रेगुलेट हुआ और जिस तरीके से आज हम वर्ल्ड का एक बेस्ट डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज है, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी बढ़ के है, मुझे लगता है क्योंकि आने वाले दिनों में एफएनडो का जो पूरा मसला है, जिस तरीके से सेबी अभी कुछ नहीं बोल रहा है,
जिस तरीके से गवर्नमेंट नहीं बोल रही है। एक बात आज रॉयटर्स की आई है, बड़ी खबर है कि गवर्नमेंट ने अदानी के पेपर्स, मतलब मिनिस्ट्री ने चेक करना शुरू किया, सोर्स बेस्ड रिपोर्ट है, और इस तरफ सेबी ने उसके डीलिंग्स में मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन मुझे लग रहा है पूरा का पूरा F&O रेगुलेट होगा इंडिया में, क्योंकि ये जो पैसा लगा है शेयर मार्केट में कोरोना और कोविड काल के बाद, और ज्यादातर अगर आप यूट्यूब में एडवर्टाइजिंग वीडियोस देखेंगे तो वहां लोग बोलते हैं कि हमने 2 लाख का कैपिटल लगाया, आज हम 2 करोड़ की पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो F&O से पैसा आया है, ये मुझे लगता है कि इसमें ये चीज हो सकती है। तो ये एक साजिश हो सकती है पूरी की पूरी। जो आप जिस तरीके से बोला जा रहा है कि आप आर्थिक तरीके से अगर लोगों को गुलाम बनाओ तो आप राज कर सकते हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप जहां जहां से पैसे आ रहे हैं या जो बन रहे हैं उसको आप एक प्लग इन कीजिए, खोल एक सिस्टम कीजिए। आता हूं उस पे आता हूं। तो और नहीं आप नहीं हिमांशु जी, नहीं प्लीज और लोग भी हैं हिमांशु जी, प्लीज मैंने आपको काफी समय दिया है। नहीं देखिए, आप समझिए एक कार्यक्रम की अपनी एक सीमा होती है, उसके हिसाब से हमें अपने कार्यक्रम को संचालित करना पड़ता है। तो कहानी बहुत लंबी है अडानी की, मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन हमें तो कार्यक्रम के हिसाब से उसको सामने रखना पड़ेगा ना। तो मैं हरि कुमार जी आपसे जानना चाहता हूं कि जिस साजिश की बात हिमांशु जी ने अभी की, क्या आप उस साजिश को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो साजिश है? मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। अगर ये चलिए 10 सेकंड ले लीजिए जी, यहाँ पे अगर ये F&O रेगुलेट होता है तो उसको G20 के टेबल पे रखा जाएगा कि हमने हमारे स्टॉक मार्केट को F&O को रेगुलेट किया है, और वही चीजें G20 में मल्टीप्लाई होगी, और तब जाके ये पूरी कैपिटलिस्ट लॉबी शॉर्ट सेलर्स की पूरी एक्टिविज्म को खत्म करेगी, और कहीं पे भी दुनिया में ऐसे स्कैम्स बाहर नहीं आएंगे जी। ये सभी हरि कुमार जी, ये तो दूर की बात हो गई, ये होगा G20 की टेबल पे जाएगा, शॉर्ट सेलर की पूरी उस पर रुक जाएगी, मुझे इसमें संदेह लगता है जी। जो बात हिमांशु जी कह रहे हैं ना, वो काफी जानकारी के आधार पर कह रहे हैं, वो थोड़ा उनकी ज्यादा एक्सपर्टीज इस मामले में, बिजनेस जर्नलिज्म में रहे हैं, काफी सालों तक उन्होंने काम किया। हो सकता है उसमें कोई तथ्य हो सकता है, ये चीजें थोड़ा बड़ी गूढ़ होती हैं, हम लोगों को उतना समझ नहीं आई। हमने बिजनेस जर्नलिज्म नहीं किया, विनोद जी ने नहीं किया, जोशी साहब ने किया, इन्होंने किया। हो सकता है बहुत सारी चीजें इनको दिख रही हो, हम लोगों को अभी ना दिख रही हो। मुझे सही बातें भी सामने आए, तो ये आप कैसे बैलेंस करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा है कि जैसे हर्षद मेहता का जो मामला हुआ भारतीय शेयर बाजार में, और भारतीय शेयर बाजार जिस तरीके से पूरा डिजिटाइज हुआ, आज हम वर्ल्ड का ऐसा एक्सचेंज है कि जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी बढ़िया है, जब ट्रांजैक्शंस की बात हो या सर्वेलेंस की बात हो, इन सब मुद्दों के लेके सेबी के पास भी बहुत ही अच्छा सर्वेलेंस वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें, खास करके F&O सेगमेंट, क्योंकि आजकल हम वीडियोस देखते हैं कि कोई बोलता है कि हमने 2-3 लाख रुपया लगाया, आज हम 2-3 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करते, वो F&O के जरिए सब होता है। तो कहीं ना कहीं F&O सेगमेंट जो ऑलरेडी रेगुलेटेड है, पर एक तरीके का सट्टा है जिसमें शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है, जिसमें ये सब कयास लगाए जा सकते हैं। तो F&O सरकार कहीं ना कहीं कुछ उस पर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स तो नहीं लाएगी, और जब ये लाके बोलेगी G20 के टेबल पे कि हमने ये जो हिंडनबर्ग वगैरह जो भी हमारे देश में हुआ, जिस तरीके से हुआ, अभी ये कोर्ट में गए, तो ये हमने रेगुलेट किया, आप भी कीजिए, तब जाके अगर G20 कंट्रीज ने इसे रिप्लिकेट किया तो शॉर्ट सेलिंग एक्टिविज्म खत्म हो जाएगा और स्कैम्स कभी बाहर नहीं आएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पूरे बिजनेस खेल की, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कैपिटलिस्ट शॉर्ट सेलर से बहुत ही परेशान है, और मीडिया ने इतना सब कुछ लिखा, इतना सब क्लोज डोमेन में, लेकिन कभी इस तरीके का मतलब झटका नहीं लगा है। जबकि ये 32,000 वर्ड की 106 पेज की एक रिपोर्ट आई, शॉर्ट सेलर ने बोला कि नहीं आपका वैल्यूएशन ये है, तो एक जोर का झटका लगा। तो आप ये केस स्टडी के तौर पे भी प्रेजेंट कर सकेंगे, ऐसी एक संभावना भी है।